he could tell me its name because he was more familiar with its fragrance and aroma. So nothing to feel shy or feel inferior about this. Everybody, each day you must learn something new, input. So if this wood is again here, so again those who have not smelled it, you can smell it and try to fix your reflexes so that in future, if you happen to see its wood, maybe a kind of almirah or some wooden box lying somewhere, maybe in timber shop or furniture house, wherever, or saw mill, you should be able to pinpoint without undertaking its microscopic examination. The tree is Himalayan cedar, very important tree of our Jammu and Kashmir, and this particular tree is labeled as the national tree of one country. Can you tell the name of the country which has declared it as their national tree? Our national tree, you are familiar, that is a fig, banyan fig, Ficus bengalensis. But which other country has declared it as the national tree? Cedrus deodara, devdar. In local language, sometimes in Dogri, Pahadi, we call Diyar also. In Bhadrabai, Ged also. And in Pashto language, it is called as Paludar. And this particular tree is the national tree of Pakistan. Okay? You took time, you in searching Google. Very good. Whatever means you adopt, it's no problem. But try to connect to the tree. And another twig, where is that twig? Leafy twig, which I... now you bring this side. Try to tell me its name. Any idea? अब आप ये इसकी पत्ता लेके ना ट्राई टू स्मेल इट. नीचे बैठो आराम से. इसलिए मैं सिर्फ स्मेल की बात कर रहा हूं कि ये खुशबू कैसी है, सुगंध कैसी है. जस्ट ट्राई टू गिव मी दैट इनपुट, ओनली दैट मच, कि कैसी सुगंध लग रही है. तो अर्लीस्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स वाज मोस्टली आल्सो बेस्ड ऑन फ्रेग्रेंसेस, एंड दिस वाज आल्सो अ वे ऑफ हीलिंग अवर एलिमेंट्स दैट वाज कॉल्ड एज एरोमा थेरेपी. दुल्हन को बड़े खूबसूरत खुशबू वाले फूलों के हार पहनाए जाते थे. क्यों? बिकॉज थोड़ा सा स्ट्रेसफुल टाइम होता है, बिकॉज द दुल्हन हैज टू लीव दिस हाउस एंड गो टू अदर हाउस एंड दे आर स्ट्रेंजर टू बिगिन विद. So obviously to de-stress, usually you have these different fragrances, fragrant flowers, juhi, chameli, like that. So idea लगा कुछ? But aroma है कि नहीं? है ना? Show me now this twig. This tree twig is like, it smells like walnut leaf. I don't know whether somebody could come closer to walnut like smell or not. If you pluck its lamina and try to smell it, it has some kind of smell with akin to walnut. अखरोट के पत्ते की सुगंध की तरह इस पत्ते की भी सुगंध है. एक दूसरा, the way we use the bark of walnut tree for cleaning our teeth and also reddening our lips, same property this tree also has. This is also used for reddening the lips. But God is so great. God has gifted each and every different climate with that kind of a property in some plant. For example, walnut usually grows in temperate hills, Kashmir, Bhadraba, but it cannot grow in Kathua or Saharanpur or Madhya Pradesh or Rajasthan, Udaipur, Jaipur, scorching heat, 42 degree temperature.
But God wanted to gift the ladies, you can say particularly because they are using, of Rajasthan also with that kind of wood bark, which can be used to clean the teeth as well as redden the lips. So this tree was gifted by God to the tropical and subtropical climate of India. So we find this tree in the wilderness also growing in Kathua forest, Samba forest, but not in Bhadrawa, not in Kashmir, because there is Juglans regia. That is akhrot. And which particular this tree is? This tree is called Indian alum tree. And what is alum tree? We have another alum tree which is found in Bhadrawa, Gatha, very old and huge trees. Manu, Maral, what you call in Bhadrawa? वो जो नाग मंदिर है नीचे जहाँ पे यात्रा जाती है, बड़े बड़े ट्रीज हैं. अलमस है, विलोसा है, वो अलमस विलोसा. जियारतों में हम देखते हैं मोस्टली ट्री स्टैंड्स प्रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड, उसको कहते हैं अलमस. अलमस की दो स्पीशीज है जम्मू कश्मीर, एक है अलमस वालिचियाना, एक है अलमस विलोसा. फर्क क्या है दोनों में? अलमस वालिचियाना इज थ्रेटन ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. और फर्क क्या है? उसका लीफ ब्रॉड होता है, एक फर्क. दूसरा फर्क उसका लीफ फ्रूट जो है ना उसको कहते हैं समारा. समारा का खास पहचान क्या है? इट इज ए काइंड ऑफ विंग्ड फ्रूट. विंग्ड फ्रूट रहता है लेकिन वो विंग जो है ना वो ज्यादा राउंड है, ज्यादा बड़ा है वालिचियाना में, लेकिन वो जो विंग्ड फ्रूट है वो छोटा है और ओवल शेप है इन केस ऑफ विलोसा. और पत्ता भी नैरोअर है, पत्ता भी काफी तंग है इन केस ऑफ विलोसा, एंड काफी ब्रॉड है इन केस ऑफ क्या वालिचियाना. एक टाइम था इसको भी अलमस में रखा जाता था. मोस्टली जो भी अलमस हैं, ब्रिन, मराल, लोकल नेम्स हैं, पुंछ, रजौरी, कश्मीर, भद्रवा, वहां पे पत्तियों पे दांत होते हैं. लीफ लमाइना इज टूथड, बट हियर यू डोंट फाइंड एनी टीथ. ध्यान से देखा हो, इसमें कोई दांत नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? मार्जिन इज इंटायर. और इसी को स्पीशीज नाम देने के वक्त इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को बॉटनिस्ट ने उठाया और उसने उसका नाम दिया इंटेग्रीफोलिया. इंटेग्रीफोलिया मतलब फोलिया मतलब पत्ता, पत्ता जो विदाउट एनी सिरेशन या डेंटेशन हो, लेकिन बिकॉज ऑफ फ्रूट इट इज अलमस, तो इसका नाम था अलमस इंटेग्रीफोलिया. पर उसके बाद आजकल तो जेनेटिक भी है एंड देयर आर माइक्रोबायोलॉजिकल, डीएनए एंड मेनी अदर फीचर्स. अल्टीमेटली दिस वाज सेग्रीगेटेड फ्रॉम द जीनस अलमस. आजकल इसकी अपनी जीनस है, उसका नाम है हालोपटिलिया. हालोपटिलिया इंटेग्रीफोलिया. इसका बोटानिकल आइडेंटिटी क्या है? होलोपटिलिया इंटेग्रीफोलिया. लेकिन ये बोटानिकल नाम बड़े पुराने नहीं हैं, ये 100-200 साल पुराने नाम घड़े गए हैं. इससे पहले का नाम जो राजस्थान में राजस्थानी की बोली में है, जो संस्कृत में इसका नाम है, तमिल में इसका नाम है, तेलुगु मलयालम में इसका नाम है, बांग्ला भाषा में इसका नाम है, हिंदी में इसका नाम है, दैट इज मच ओल्डर. तो हमारे आगे पीछे जो पेड़ पौधे हैं इनके दो किस्म के नाम आपको मिलेंगे. यो मिलेंगे एथनिक लोकल नेम्स विच आर मच ओल्डर, विच आर फेमिलियर टू अवर local people, and others are scientific names which are cumbersome to remember and known only to the experts. So expert कहेगा इसको Holopatilia integrifolia, but if I will show this plant to some Kathua boy or elder person hailing from Kathua or Basoli or even Samba, Hiranagar, so he will say this tree is Daddar Rukh. Daddar is kind of eczema, skin disease. So because it has roughness, not only roughness, it is used for the skin ailments, especially called daddar. Daddar is a kind of skin ailment. So because it was used traditionally for the treatment of daddar kind of skin disease, so it got its name as Daddar Rukh. And another name is also Samma.
because it is rich in tannins, and once upon a time it was also used for tanning the leather. So because of that also it got its another name, Samma. But in Rajasthan they have different language. So this particular tree is called as बंदर पापड़ी, या सहारनपुर में इसको पापड़ी ही बोला जाता है। क्यों? जैसे पापड़ होता है वैसे ही इसका फ्रूट होता है, अगर दिखे तो। फ्रूट तो है नहीं आज इसमें, तो दैट हैज वेरी क्रिस्पी टेक्सचर लाइक पापड़, तो इसका नाम पापड़ी भी है। और 2 दिन बाद हमारे इधर शिवरात्रि होनी है, और शिवरात्रि में बेल का बड़ा महत्व होता है, बेल ट्री का, तो उसका संस्कृत नाम है बिल्ब। बेल पत्र का संस्कृत नाम है बिल्ब, और इसको कहा जाता है चिरविल्व। तो इसका एक संस्कृत नाम जो है वो विल्व से मिलता जुलता है, चिरविल्व। और दूसरा क्या है, अंग्रेजी नाम भी है इसके, जैसे मंकी बिस्कुट ट्री। बिस्कुट like fruit eaten voraciously by the monkeys. Monkeys are coming to the cities, towns, and there's a man-animal conflict. तो क्या है, जंगल में इस किस्म के पौधों को रोपित करना, लगाना, ये एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है, so that monkeys, simians get their food from the wilderness. They need not to come to our city places. लेकिन there are some devotees who are so much fond of फीडिंग द मंकीज। वो केला देंगे, ब्रेड देंगे, काले चने लेंगे, एंड देन दे आल्सो बिकम सो, यू कैन से, कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। दे आल्सो स्टार्ट एंजॉइंग दोज फूड फीस्ट विच आर नॉट मेंट फॉर द वाइल्ड एनिमल्स। सो इफ यू कैन परसुएड द फ्रेंड्स एंड dear ones who are feeding, it is always better to let the wild animals feed on the food items which God has already made for them, so that we don't generate the man-animal conflict. So this tree is very useful timber tree. So both were very important. One was softwood Cedrus deodara, known as the softwood, and here this one gets the hardwood, and this is called as Halopotelia integrifolia, and that wood was for Cedrus deodara. I am a forest officer. 1911 was the year when we lost 2 taxonomists in India who worked lot of work on the taxonomy of the trees, plants, and both left this mortal world in 1911. और 2011 का साल जो था, इट वॉज द ईयर डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट। और 2011 में उन दोनों को याद किया गया, स्पेशली 100 ईयर्स के बाद, हु लेफ्ट दिस वर्ल्ड, बट दे ब्रॉट अस मेनी मिस्ट्रीज ऑफ नेचर, स्पेशली न्यू एंडेमिक्स। तो एक खास किस्म के पेड़ पौधे होते हैं जिनको बोलते हैं RET स्पीशीज। क्या होते हैं वो? रेयर, जिसके कहीं मिलेंगे 2 दरख्त, 4 दरख्त, और काउंटिंग भी करेंगे तो लगेगा 2000 ही है, एक ही पेड़ है या 2 पेड़ हैं, उनको बोलते हैं रेयर भी। और एंडेमिक, अगर वो सिर्फ खास पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन में हो तो उसको बोलेंगे हम रेयर एंडेमिक। और अगर वो पॉपुलेशन इतनी डिक्लाइन हो गया है, रीजनरेशन नहीं हो रही, देयर इज सम प्रॉब्लम इन मल्टीप्लिकेशन, या ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, ओवर हार्वेस्ट हो रहा था, अल्टीमेटली दैट टैक्सा प्लांट कहां चला जाता है? थ्रेटन्ड कैटेगरी में। और थ्रेटन्ड कैटेगरी में वी हैव सम प्लांट्स विच आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और कुछ एंडेंजर्ड हैं, कुछ वल्नरेबल हैं। वल्नरेबल मतलब उनको ज्यादा इतना खतरा नहीं है, लेकिन जिस तरह से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, जहां हैबिटेट हम मॉडिफाई कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, अल्टीमेटली दैट हैबिटेट मे नॉट बी सस्टेन दैट पर्टिकुलर प्लांट, तो अल्टीमेटली वो भी कल आ जाएगा इस कैटेगरी में, थ्रेटन्ड की कैटेगरी में, एंडेंजर्ड, और फिर और ज्यादा है तो फिर क्रिटिकल एंडेंजर्ड। कैन यू टेल मी वन ट्री विच इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन इंडिया? क्योंकि आजकल तो
नॉलेज आपके पास है। इंटरनेट में आप डालो क्रिटिकली इंडेंजर्ड ट्रीज ऑफ इंडिया तो आ जाएगा, अगर आप गूगल से भी निकालो कोई बात नहीं। एक ट्री है जिसको बोलते हैं रेड सैंडर्स, रक्त चंदन, लाल चंदन। दो किस्म के चंदन के पेड़ हैं। एक होता है सफेद चंदन जो हम देखते हैं, जम्मू में भी लगा हुआ है, मंदिरों में भी देखते हैं, जिसको उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रलम एल्बम, बोटानिकली स्पीकिंग, चंदन। और दूसरा है लाल चंदन, अंग्रेजी में उसको रेड सैंडल्स भी कहते हैं, जिसके ऊपर फिल्म भी बनी। वेरी गुड। किसने नाम लिया पहले, किसने नाम लिया? वेरी गुड। मैं आपका ही चेहरा देखना चाह रहा था। who could tell me? Very good. You are connected to the surroundings. What is happening? So this is the critically endangered tree and also endemic. क्या जम्मू में होता है? हमने लगाया हुआ है, लेकिन वो इसकी नेचुरल नेटिव रेंज नहीं है। जम्मू में हमने लगाया है, बागे बाहुग और सम अदर लोकेशंस, लेकिन उसको लगाने से हम नहीं कह सकते कि ये जम्मू का भी पेड़ है। वो बेसिकली इट इज कमिंग ओनली फ्रॉम तिरुमला हिल्स इन आंध्र प्रदेश। तो ये पर्टिकुलर ट्रीज का आल्सो रियर मीन्स इसकी पॉपुलेशन कम है, इन फ्यू थाउजेंड्स, 20,000 25,000 ट्रीज। दूसरा ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इट इज स्मगल्ड, इट्स वुड इज एक्सपोर्टेड टू चाइना, जापान, कोरिया, और सो मेनी केसेस स्मगलिंग की रिपोर्ट होते हैं, इसीलिए फिल्म भी बनी थी वो पुष्पा। एंड अदर इज इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो वेरी रिस्ट्रिक्टेड। कहां पे है ये? ओनली इन साउथ इंडिया, ईस्टर्न घाट। तो इसको तीनों कैटेगरीज में आप रख सकते हो। रियर ट्री भी है इंडिया का, एंडेमिक ट्री भी है, और क्या है, थ्रेटन ट्री भी है, और क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अब इसकी थोड़ी सी फॉरेस्ट नर्सरीज में ज्यादा प्रोपेगेशन हो रही है, तो ये थोड़ा सा, अब कुछ लोग कहते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड से इंडेंजर्ड मानो इसको, अब क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है। मैं आवाज नहीं, इतनी दूर से नहीं पता चल रहा। और बातें क्या पकड़े? स्मगलर्स? हाँ, नहीं, देखो, ये बेसिकली का काम होता है फील्ड स्टाफ का, ठीक है ना। फील्ड स्टाफ के लेवल पे मुझे उस वक्त कोई ऐसा मौका नहीं मिला कि जहां पे कोई वुड ले जा रहा है, और रात को लेते हैं मोस्टली, और उस वक्त जो फॉरेस्ट स्टाफ चेक पोस्ट पे होगा तो वो ही उसको पकड़ेगा, ठीक है ना। तो चूंकि हम इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर, एक अफसर हो जाता है, तो हमारे नीचे जो 2-3 रैंक नीचे होते हैं वो ही ये काम कर लेते हैं। अल्टीमेटली वो केस जो है कई बार कोर्ट में भी उसको चैलेंज हो जाता है, तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। बट मैंने खुद ये नहीं पकड़ा कोई ऐसा केस कि जिसमें मैंने स्मगलिंग के लिए इतना किया हो। दूसरा ट्री जो जम्मू कश्मीर के हवाले से हम कहेंगे, ओनली ट्री इन एशिया, सिर्फ एक ही एग्जांपल है, सिंगल ट्री स्टैंडिंग, ऑल्दो दैट इज इंट्रोड्यूस्ड, दैट इज रेड वुड ट्री। रेड वुड ट्री भी एक किस्म का क्यूप्रिसेसी फैमिली, सरू फैमिली का एक ट्री है, विच इज फाउंड ओनली इन कश्मीर, टंगमर्ग। टंगमर्ग में एक यारिका जगह है, वहां पे सिंगल ट्रीज एग्जिस्टिंग, जिसको बोलते हैं सिकोयोडेंड्रॉन गाइगेंटियम। क्या बोलते हैं? सिकोयोडेंड्रॉन गाइगेंटियम। और ये नेचुरल इसके जो फॉरेस्ट हैं वो कैलिफोर्निया में है, नॉर्थ अमेरिका में। यहां पे रेडवुड नेशनल पार्क्स बने हुए। तो हमारे पास हमारी हेरिटेज ट्री में इसको हम रख सकते हैं। कौन सा ट्री? सिकोयोडेंड्रॉन गाइगेंटियम काइंड ऑफ ट्री, जिम्नोस्पर्म है, क्यूप्रिसेसी फैमिली का है, सरू का, सरू माने साइप्रस ट्री। और 75 साल जो आजादी के हुए, तो जिस तरह से नेशनल लेवल पे भी फोकस रहता है कि कुछ चीजें 75 हों, तो एक और बुक आई है लास्ट ईयर जिसमें है 75 हेरिटेज ट्रीज ऑफ इंडिया, और उसमें 3 ट्रीज जम्मू कश्मीर के भी है। 75 में से 3 पेड़ कहां के आगे? एक आ गया रेडवुड ट्री, वही कश्मीर वाला सिकोयोडेंड्रॉन गाइगेंटियम, क्योंकि पूरे एशिया में और कहीं नहीं है। अदरवाइज दिस इज नेटिव टू नॉर्थ अमेरिका।
तो इसलिए ये हेरिटेज ट्री हो गया, एक तो एज वाइज भी और सिंगल स्पेसिमन सर्वाइविंग इन कश्मीर वैली। इसलिए दूसरा पेड़ जो अभी हम शिवरात्रि का उत्सव भी मना रहे हैं, तो ज्यादा तो पीर खो में मनाया जाता है जामवंत गुफा, लेकिन दूसरा है पैसे वाला, रुपए वाला मंदिर पंचबख्तर। वहां पे पुरानी बेर है। माना जाता है कि जब गुरु नानक आए वहां 2-3 दिन रहे थे और उस पर्टिकुलर बेर को या उन्होंने लगाया या उसके नीचे वो बैठे थे, तो समहाउ एसोसिएटेड विद दैट गुरु नानक विजिट 16th century, so that is also preserved till date। तो वो एक और पेड़ है बेर का पंचबख्तर मंदिर में, जम्मू शहर में, ओल्ड सिटी में, विच हैज आल्सो फाउंड एंट्री इन द 75 हेरिटेज ट्रीज ऑफ इंडिया। और थर्ड वन क्या है, तीसरा एक और है, वो है सबसे बड़ा तून ट्री। तुण डोगरी में तुण भी बोलते हैं, तुनी भी बोलते हैं, ऐसे इसका भी नाम वो नंदी वृक्ष है संस्कृत में। नंदी, शिवा के भी नंदी है, तो वेरी इंपॉर्टेंट ट्री, वेरी गुड टिम्बर ट्री। टुना बोलते हैं आजकल इसको, टुना सिलिएटा, मिलिएसी, नीम फैमिली का प्लांट है ये ट्री। लार्जेस्ट ट्री एग्जिस्टिंग इन रांग विलेज इन रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। अगर कोई उधर से है क्या, एनीबॉडी फ्रॉम उधमपुर डिस्ट्रिक्ट? So if you are there somewhere nearby, you must visit this tree, which is the largest Indian mahogany. Also, it is not mahogany, but popularly called as Indian mahogany. And this tree is also included in 75 heritage trees of India. बसंत उत्सव में बुर्रांस के स्नैक्स और बुर्रांस के फूल की चटनी खट्टी और बुर्रांस पकौड़े चटपटे मिर्ची वाले। बसंत उत्सव का आगमन हिमालय में हो चुका है और जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बुर्रांस के फूल खिलने लगे हैं और भारत में 80-90 प्रजातियां हैं और जिनमें कुछ लुप्तप्राय हो चली हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट पूर्वी भारत में अरुणाचल प्रदेश में मिलने वाला बुर्रांस रोडोडेंड्रॉन जोहान्सटीनियनम, और हमारे क्षेत्र में जो खाद्य बुर्रांस है, उत्तराखंड में भी जिस बुर्रांस को खाद्य पेय, बेवरेजेस, चाय और पकोड़े में के रूप में लिया जाता है, वो है लाली गुरांश या लाल बुर्रांस, डोगरी में च्यू, मदाल, हरदुल, रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम, जिसको सबसे पहले जम्मू कश्मीर में खोजा था कैप्टन हॉर्ड विके ने, और स्मिथ ने इसको डिस्क्राइब किया था। लेकिन ये सौभाग्य था कि पहला रोडोडेंड्रॉन जम्मू कश्मीर से ही विज्ञानियों की नज़र में आया था और उसके बाद यूरोप में तहलका मचा था कि किस तरह से दार्जिलिंग और सिक्किम, हिमालय में बुर्रांसों की कई प्रजातियां हैं। और जेडी हुकर ने भी बुक भी लिखी बुर्रांस के ऊपर, द रोडोडेंड्रॉन्स ऑफ दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय। तो ये बुर्रांस जो है, ये होली के आगमन पर कई बार होली से पहले, जैसे इस वर्ष जल्दी गर्मी हो गई तो ये गणतंत्र दिवस से ही खिलना शुरू हो गया है। और ये रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम एक दुर्लभ ना हो जाए, इसलिए ज़रूरी है कि हम इसकी चर्चा तो ज़रूर करें, लेकिन इसका दोहन भी सतत हो, सस्टेनेबल हो और फॉरेस्ट नर्सरीज में इसका रोपण हो, इसको बढ़ाया जाए ताकि वन महोत्सव में हम बुर्रांस को रोपित कर सके उन जगहों में जहां बर्फ गिरती है। टेम्परेट फॉरेस्ट ट्री जो ओक फॉरेस्ट का एसोसिएट है,
और बहुत सी प्रजातियां जहरीली होती हैं, लेकिन ये च्यू जो है, लाल बुरांस जो है, हड़दुल जो है, जो हमारे जम्मू के शिवालिक्स में नज़र आता है बसंत के इस मौसम में, ये खाद्य है। और ना सिर्फ खाद्य, लेकिन उत्तराखंड में तो इसको देवी देवताओं के भी फूल दही के उत्सव पर चढ़ाया जाता है और इसके हार शादी विवाह समारोह में भी बनाकर सजाए जाते हैं। और इसका शरबत दिल के रोगों के लिए भी बड़ा लाभकारी माना गया है। इसमें आयरन बहुत होता है, विटामिन सी बहुत होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। तो लोग खाद्य व्यंजन तो डेवलप करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ होली के रंग में भी रंग जाते हैं। और होली का गुलाल चूंकि ढाक प्लाश वहाँ होता नहीं है, और वहाँ पे हिमालय संस्कृति में बुरांस के फूलों से बनाए हुए रंग से होली खेली जाती है। बसंत उत्सव, शिवरात्रि और फिर होली, इन उत्सवों की रंगत में शामिल है हिमालय का बुरांस, लालीगोरांश नेपाल का राष्ट्रीय फूल, नागालैंड का राजकीय फूल और उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष, डोगरों का च्यू, पहाड़ियों का हड़दुल और त्रिकुटा हिल्स सुजनधार में रहने वाले लोगों का ये मदहाल और संगड़ शिवखोड़ी का ये इक्कर गुल। रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम हिमालयन रोज ट्री एरिकेसी एरिकेल्स आर्डर्स में और एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप के हिसाब से इसको एस्टेरिड्स में रखा जाता है, क्योंकि इसका कोरोला जुड़ा रहता है एक घंटी की तरह।